Integration. Let's start the basic concept of integration. So अभी आप ये समझो कि ये कैलकुलस के पार्ट्स हैं. ओके, सो कैलकुलस we have here integration and differentiation. Okay, so differentiation you already studied in your previous class. Okay, so हम differentiation already पढ़ चुके हैं और ये differentiation को हम क्या करते हैं, अभी for time being हम इसको जो है consider नहीं करेंगे. हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन. लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं. जो फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं वही सेम फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन में रिवर्स मैनर्स में यूज करते हैं. सो आपको क्या मतलब मींस डिफरेंशिएशन होता क्या है एंड इंटीग्रेशन होता क्या है और इसका यूज क्या है, ये आपको समझने की यहाँ पे जरूरत है फॉर बिल्डिंग आवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. नाउ if you see, for example, if you have rectangle A, B, C and D, okay, so you can easily find out what is the area of this. AB into BC. You can easily find out 5 for 10 for example, so it's the 50, so you can easily calculate. But अगर आपके पास कुछ ऐसे कर्व हैं, for example if you see this is our origin O, Y and X. Okay, you have some arc like this. Okay, now you have to calculate the area and volume or surface area, anything. So it is quite difficult. So by the process of integration and differentiation we can get these values. अभी differentiation, first thing differentiation. एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी जो है किसी भी अगर ऑब्जेक्ट है आपका, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को आप पीस में डिवाइड कर देंगे. ओके, हम इसको पीस में कट कर रहे हैं, इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर रहे हैं. सो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मींस इसको अलग कर रहे हैं. एंड इंटीग्रेशन इसका जस्ट रिवर्स है. पहले हम इसको छोटे से पीस में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद इसको लिमिट के थ्रू हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो अभी यहाँ पे आप देखो ये आर्क है, इसको मेजर करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा. लेकिन अगर आप लेट्स थिंक अबाउट दिस स्मॉल एरिया, सो दिस स्मॉल एरिया यू कैन सी इट विल कम लाइक ए रेक्टेंगल. ओके, सो दिस स्मॉल एरिया कम्स एज ए रेक्टेंगल, सो यू कैन इजिली कैलकुलेट what is the area of this. Okay, so now see here, so if you got the area of this small strip, so this will become fx dx, and this fx is this. Okay, so now while putting the limit you can get your value. Okay, so now you are able to understand what is the integration and where we are going to implement these things. Okay, so now second example, if you see we have the sine curve here. Okay, and function of this is equal to sine x. Now if you are calculating here what is the area of this, so it is quite difficult because area bounded the curve, that calls integration. Okay, so if you are considering here, so it is quite difficult to get this area from 0 to pi
and we can consider here 2 pi and here 3 pi. Okay, so now what we are doing here, we are just taking a small strip here, 0 to 3 pi and fx dx. So by this integration you can easily find out the volume, area or anything what we have in regular shape, जिसका शेप डिफाइंड नहीं है, जिसके हमारे पास फार्मूलेज नहीं है. ओके, सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन. एक्चुअली में इंटीग्रेशन है क्या और उसका यूज क्या है. ओके, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट. Next point is type of integration. So we have definite integration and indefinite integration. So definite integration, we need to define the function with respect to some limits like 0 to 1. If you are defining this limit, so this is our definite integration. We are bounding. अब यहां पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये सोचोगे कि ये हम एक बार पुराने फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो अभी नए फार्मूले की जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. नाउ की फीचर, सी हियर की फीचर. आपने 0 से 1 पे एक बार कैलकुलेशन अपना कर दिया, ठीक है, आपका कुछ सम वैल्यू आ गया, मतलब 15 मीटर स्क्वायर आ गया, कुछ वैल्यू आ गया. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, राइट. कुछ इसका वैल्यू आ गया. अभी आपका जो फंक्शन है, आपको बोला गया नहीं यार, एक्चुअली वी नीड टू कैलकुलेट बिटवीन 5 to 10. सो होगा क्या, वंस अगेन आपको फिर से वो पूरे फार्मूले करने पड़ेंगे और इस वैल्यू को जो है फिर से पुट करना पड़ेगा और वो आपके लिए वेरी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. सो इंटीग्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन वी आर ऑलरेडी डिफाइनिंग आवर गोल एंड इन लास्ट मोमेंट देन वी आर प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू. दिस इज कॉल्ड आवर लोअर लिमिट and this is our upper limit. Okay, so by this formula, by this integration, the calculation part will be easy. हम इसको applied science में भी यूज करते हैं. if you go to the any applied science theory, so वहां पे हमारे पास बहुत सारे iterations होते हैं. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगर हम एक जो है फंक्शंस को रीड करने लगे, उसका जो है वैल्यू निकालने लगे, उसका एरिया निकालने लगे, देन वी विल फेस द इशू. वो इशू ऐसा होगा कि आप कैलकुलेट ही करते रह जाओगे और रिजल्ट आपका जो है निकलने में बहुत टाइम लगेगा. सो दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन मेक्स योर कैलकुलेशन इजी, योर लाइफ इजी. ओके, if you are doing some practical work. Now we'll go to the concept of integration. These are also concept for the integration. You can see here, this is our function with respect to this. What is that meaning? The meaning is here, fx function should be in terms of x. आप ये फंक्शन जो हमेशा x के टर्म में होना चाहिए, तभी ये आप इंटीग्रेशन कर सकते हो. अगर ये फंक्शन x के टर्म में नहीं है, देन वी नीड टू कन्वर्ट इन x टर्म. ओके, सो दिस इज कॉन्सेप्ट. क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब हम आपको बताएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको लगेगा कि यहाँ पे तो x है और यहाँ पे t का फंक्शन है या यहाँ पे y का फंक्शन है. सो आपको लगेगा हम फार्मूला इजिली पुट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट. वी नीड टू कन्वर्ट दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू t.
सो कमिंग चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, सो अप टू नाउ इफ इट्स क्लियर देन we will move. This is our 7.1 concept, 7.1 NCERT 7 chapter, and this is concept for the 7.1 NCERT book. Okay, so I am just here, our platform Udaan is only for making the building the concepts. Okay, and whatever you have the doubt, कुछ भी इससे रिगार्डिंग डाउट्स है कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, सो आप हमारे चैनल के थ्रू आप इसको जो है पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों को भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्ट कर सकते हो कि जो बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है वो बेस है किसी भी चीज का, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड नहीं होता है और आप जंप करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देन ओनली यू आर ओनली डिगिंग द ओनली सॉइल.